Hello, guys, and welcome to the brand new episode of 20ish podcast. So, today we have a very special guest on board, and she is Mansi Jain. So, Mansi is doing her majors in economics from Delhi University, and she is a very close friend of mine. So, the topic for today is very interesting. We are going to talk about market and economic activities and how they are interrelated. So, let's begin. Hello everyone, I am Mansi, and to add more information, Kashish is my annoying roommate. Okay, so hi Skand. Hi. Now, so as we are going to discuss about like economics and what's its role in the society. Yeah. So I would first like Skand to introduce the topic. So today we are going to talk about different things like how market actually affected religion and vice versa, and of course how market is just not related to economics but also sociology. So Yeah, let's begin the true. topic. Yeah. या टू स्टार्ट Yeah. विद वी विल लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट मार्केट इज. अगर हम इकोनॉमिक के मतलब पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट क्या है. मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स, है ना. Yeah, बट but सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती हैं, है ना मानसी. yes, basically sociology के according market is a place जहाँ पे different background के लोग, different culture, being it different religion, being it different geographical place where they inhabited, वहाँ से लोग एक दूसरे के आसपास आते हैं, they interact with each other. So market is not only about trade or economy, but it is also about like exchanging your social perspective. या इट्स लाइक कल्चरल एक्सचेंज टाइप ऑफ थिंग. Yeah, yeah. हाँ. So today we are going to talk more about from the sociological perspective than Perspective. economic perspectives. Yes. So, So Skan, what are your views? Yeah, so we can kind of relate past. If I talk about Chettiars of Nadu, right? yeah, Natukota Chetias of Tamil Nadu. Yeah. So they are based. No, Yeah, go ahead. continue. Okay, so Chettiars, as far as I know, they were kind of they settled in Madras, and because of them, Madras became one of the most cities during the British regime, right? Yes. Yeah. Yes, they were basically a trading community, and I guess being economics student, we have heard about that hundi, the bill Yeah. of payment. Bill of तो exchange. हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली. तो इट वाज लाइक कि मतलब उनका ट्रेड इतना वाइड स्प्रेड था कि उनकी जो बैंकिंग कम्युनिटी थी ना, इट वाज बेस्ड ऑन ए कास्ट सिस्टम. ओके, तो वो अपने ही कास्ट के लोगों को लेंड करते थे, एंड इट वाज मोर बेस्ड ऑन दी फैमिली ट्रस्ट एंड काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट. सो उनका बिजनेस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि उनकी जो हुंडी थी वो नॉर्थ ईस्ट, वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई थी, जिसमें वी हैव मेनी कंट्रीज लाइक श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड चाइना. तो just on the basis of their trust and their family lineage and their caste, उनका जो इकोनॉमी थी वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया तक फैली हुई थी. या So we can, yeah. मतलब अगर देखें तो आज के टाइम पे जो बैंक्स का काम होता है वो उनका एंशियंट टाइम्स में काम हुआ करता था, विच इज हाँ, काइंड ऑफ बहुत दूर के सोचने वाली चीज ना. आज हम यहाँ वही बैठ के ऐसी जो चीजें कर रहे हैं वो सालों पहले लोग कर चुके हैं. कर सो चुके क्वाइट हैं. फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग. एंड अगर हम कह रहे हैं कि जस्ट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, तो नो, एक्चुअली जब नटुकोटे आई चेटिया का हम कह सकते हैं कि जो उनका जो ट्रेड बेस था वो कहीं ना कहीं उनके म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस था, और वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट उनको मिल रहा था वो उनके कास्ट और फैमिली लीनेज की वजह से था, इसीलिए वो हिंदी इतने दूर दूर तक एक्सेप्टेड थी. अगर हम बीच में से उनका जो कास्ट लिंकेज है या फिर उनका फैमिली लिंकेज है वो हटा दे, तो फिर तो मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रेड वाज इम्पॉसिबल, और शायद उनकी जो इकोनॉमी इतनी वाइड स्प्रेड थी वो नहीं हो पाती. तो वी कैन नॉट से ना कि मार्केट इज जस्ट अबाउट ट्रेडिंग.
या ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं और कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं। जैसे अभी भी देखें हम यस। तो हम पढ़ते हैं कि श्रीलंका हो या फिर बहुत सारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हो, वहाँ तक हमारी कंट्री की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक होता है ना कल्चरल चीज़ें लाइक हम्म। अगर देखें टेम्पल्स बने हैं बहुत ज़्यादा या। चोला किंगडम्स के टाइम पे से टाइम टेम्पल टाउन। पीरियड पे टेम्पल टाउन्स मिले हैं। तो बहुत सारी चीजें और ये जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ये काइंड ऑफ ट्रेड की वजह से हुआ। अगर देखें तो यूरोपियंस भी वो तो ट्रेड करने ही आए थे ना इंडिया में, आए थे वहां पे, पर वही उनका तो कितना जब मतलब इफेक्ट पड़ा इंडिया पे। इंडिया पे मतलब हमारी पूरी लाइफस्टाइल आज के डेट पे चेंज हो गई है। अगर हम 10th सेंचुरी पहले चले जाए तो पहले हम कहाँ बिल्कुल ट्रेडिशनल हुआ करते थे, लेकिन जब हम्म। से इंडिया को कॉलोनाइज किया गया है वेस्टर्नाइजेशन। तब से हम्म। वेस्टर्नाइजेशन आ चुका है, ग्लोबलाइज हो हम्म। चुका है हमारी कंट्री। मतलब कितने चेंजेस हो चुके हैं हमारे वही पूरे तो कल्चर और वी पूरे आर मार्केट सिस्टम एक्सेप्टिंग में। वेस्टर्नाइजेशन बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज द मतलब फोकल पॉइंट जिसकी वजह से सोसाइटी भी चेंज हो रही है। पहले हमें चेंज पता होती था है। कि हमें जैसे आज के लोगों को इतना वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का मतलब है इंटरेस्ट, तो वो ये पहले कहाँ था। और अगर ट्रेड नहीं होता तो ये कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाता। सो ट्रेड एंड बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी कैन नॉट बी मतलब डिवाइड नहीं कर सकते इनको हम कभी भी। अच्छा, एग्जैक्टली। अगर हम लोकल तो इवन हमारे कोलकाता में इतना ज्यादा मारवाड़ी डोमिनेंस है, जिससे या कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत ज्यादा फैमिली वैल्यूज से अटैच्ड मैंने है। मैंने जहाँ तक के सुना है कि जो कोलकाता की मारवाड़ी कम्युनिटी है वो ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट के लिए, बिकॉज कोलकाता इज अ पोर्ट सिटी, तो पोर्ट उसकी सिटी। वजह से वहां पे वो आके सेटल हुए थे ताकि वो अपना ट्रेड इन इन द सेंस कि वो एक्सपोर्ट इजिली कर हाँ, सके। फ्लरिश हो पाए उनका ट्रेड, इसलिए वो आके सेटल हुए थे ताकि उनका ट्रेड फ्लरिश हो पाए। पोर्ट्स हैं तो वो अपने मतलब जो भी चीजें हैं उनको एक्सपोर्ट कर पाए और चीजों को इंपोर्ट कर पाए। तो बहुत मैटर करता है ये सारी चीजें अगर हम देखें सोसाइटी में तो। यस, बहुत ज्यादा ही यार। वही, और अगर हम मतलब सोशियोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सोशल साइंटिस्ट एमिली डर्कहेम। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग हिज स्पेलिंग और एम आई प्रोनाउंसिएशन राइट। या एम आई एमएल डरकाइम डर्कheim, मीन्स। या इट्स एमएल डर्कheim। डर्कहेम हाँ जो ओके। भी है, तो डरकाइम। ओके सो अगर अच्छा, हम जब हम लोग पहली बार इसके बारे में बात करते हैं, रिमेम्बर यू सेड एमिली, एंड आई वाज लाइक ये लड़का है या लड़की है, हाँ एंड यू वर लाइक नहीं नहीं, एमिल एमिल। या एमएल। अगर हम बात करें तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट नोन वाइड स्प्रेडली नोन सोशल साइंटिस्ट। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो सबसे पहले चीज ही यही कहते हैं कि मार्केट इज ऑल अबाउट सोशल एक्टिविटीज। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज होती सोशल हैं। एक्टिविटी। और कशिश इसी के साथ आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल। मतलब मैंने जब 11th या 12th में पढ़ा था तो देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे मतलब आई डोंट नो द रीजन वेयर दे केम फॉर द ट्रेड, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में लिखा था कि जब वो ट्रेड के लिए आते थे तो इट वाज मोर लाइक किसी की शादी फिक्स करनी है या फिर किसी दूसरे गांव के हाँ लोगों के बारे में जानना है, समथिंग लाइक दैट। तो वी वर लाइक वही तो पहले मार्केट में मार्केट। ये भी हो हाँ सकता है। वही तो पहले जमाने में लोग मार्केट में आते ही इतना मतलब इसलिए थे क्योंकि उनको कुछ काम हुआ करता था, ऐसे ही नहीं आते थे। मतलब इट हैज यस। मोर ऑफ अ सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड कल दैन का। इकोनॉमिक बैकग्राउंड। पहले के टाइम पे देखे हाँ। तो ट्रेडिंग वाज मोर, क्योंकि क्या होता था पहले वीकली हाट्स वगैरह होते थे तो लोग यस। दूर दूर से आते थे। मतलब बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे, मिलते थे, शॉपिंग करते थे। तो इट वाज मोर ऑफ लाइक एन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, है ना। यस जैसे एग्जैक्टली। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो गया है तो लोग ज्यादा मार्केट जाते नहीं यार है। इवन इवन ऑनलाइन मार्केटिंग का अगर हम देखें तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, लाइक हम्म। जब जियो आया और जब इंटरनेट इतनी वाइड स्प्रेड हो गई थी, मतलब उसके जो यूजर्स इतने बढ़ गए, उसकी हम्म। वजह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केट प्रमोट हुए हैं। तो हम कह हाँ सकते हैं कि मतलब सोसाइटी में जब जब चेंजेस हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ा है और हमारी इकोनॉमी एज हाँ ए होल पे भी पड़ा है। या ट्रू। यस। और और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का देखें जैसे कि पहले के टाइम पे भी ट्रेडिंग जो होती थी तो मतलब जो आते थे यूरोपियंस वगैरह वो राजा के लिए लेके आते थे स्टैच्यूज और भी पता नहीं क्या हाँ। क्या अलग हाँ अलग चीजें, तो उससे भी बहुत इन्फ्लुएंस होता था हर चीज। बहुत जैसे ज्यादा कि यार मतलब। यूरोपियंस की वजह से हमारे यहाँ पे भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स बनने लग गई और यहाँ की वजह से यूरोप में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स बनने लग गई। तो बहुत ज्यादा हमारा इफेक्ट, आर्ट हाँ आर्ट एंड कल्चर पे हमारा भी बहुत आर्ट एंड इफेक्ट कल्चर पड़ा पे है। बहुत इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट्स का।
या देख लो ना, जब कोलोनियलाइजेशन हुआ था, मतलब कोलोनियलाइजेशन तो बहुत बाद में हुआ था, जब मुगल एम्पायर हमारे यहाँ स्टेबलाइज हुआ था, तो हमारे आर्ट एंड कल्चर पे कितने सारे इम्पैक्ट पड़े थे, और हमारा जो ट्रेडिंग नेटवर्क था वो भी बहुत हद तक चेंज हो गया था उस टाइम पे भी। हम्म वही तो, जब पहले पोर्टुगल से लोग आए थे सबसे पहले, अगर हम देखें तो यूरोपियंस में, यूरोप से जो आए थे वो पोर्टुगल से इंडिया आए थे। पोर्चुगल से आए थे। हाँ, पोर्टुगल से आए थे सबसे पहले। तो उन्होंने जब यहाँ पे देखा कि अच्छा यहाँ पे स्पाइसेस का देखा, फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट एंड मतलब आर्ट पेंटिंग्स वगैरह देखा, तो वो वापस गया, और उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस यूरोपियन हिस्ट्री पे भी पड़ता है अगर हम देखें। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि यूरोप की इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री पे पड़ती है, यहाँ का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे यूरोपियन यहाँ कल्चर वहां पे में। भी पड़ता है। हाँ अब मैंने अभी एक एग्जांपल पढ़ा था, लाइक जो इंग्लिश वर्ड्स है वो, मतलब उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स है उनको फर्स्ट इंस्टेंस में समझ में ही नहीं आते, पहले तो हाँ उनको कनेक्ट करना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसे हैं फिर वैसे, लाइक टाइम पास एंड ऑल दीज आर दी वर्ड्स विच आर मोर ऑफ लाइक जो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन से निकल के आए हैं हिंदी और इंग्लिश स्पीकर्स के। वही तो। और अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में, मतलब अगर पुराने टाइम्स में भी देखें, तो जैसे कि इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में एक टर्म है डिवीजन ऑफ लेबर, है ना? या तो वैसे ही सोशियोलॉजी में भी है डिवीजन ऑफ लेबर, बट बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं कि डिवीजन मैं ऑफ लेबर, हाँ या नहीं नहीं बोल, हाँ, बोलो तो बोलो जैसे आप वो बोलो। कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर, लाइक मोस्टली लोग मानते हैं कि एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, पर अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट में ये आने से पहले, बहुत पहले से मतलब सोशियोलॉजिकली चल रहा है। जैसे कि मार्केट में तो बाद में आया ना कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कि एक लोग कार बनाएंगे, कार का व्हील बनाएंगे, एक लोग उसका डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चर होगा। पर अगर सोसाइटी में देखें तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर स्टेरियोटिपिकली बहुत देखें पहले। तो फादर है वो लिविंग के लिए मतलब अर्न करेंगे, एकदम स्टेरियोटिपिकल एग्जांपल दूं कि पापा का काम क्या है, कमाना, मम्मी का काम क्या है, घर कमाना। संभालना। तो ये अगर इवन स्टेरियोटिपिकल एग्जांपल्स हैं तो ये बहुत पहले से सोसाइटी में चल रहे थे, और यही इसी चीजों को इकोनॉमिक्स में एक्सेप्ट कर लिया गया। ये नहीं है कि वो लेके आए पहले और बाद में सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। अगर देखें तो सोसाइटी इज द फोकल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। यार, इवन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने बोला भी था कि जो काम होंगे वो मेन और वुमेन के बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो जाएंगे। जो वुमेन का काम होगा वो होगा इमोशन से रिलेटेड, लाइक केयर टेकिंग का, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, इट वाज समथिंग लाइक अफर्मेटिव टास्क होगा। और जो मेन का होगा वो मोर ऑफ दी मटेरियलिस्टिक होगा, जो बेसिक काम हाँ, उनका होगा वो बाहर जाके पैसे कमाने का होगा। तो ये चीज जो सोसाइटी में चलती आ रही थी, इसको इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में एक्सेप्ट कर लिया गया। एग्जैक्टली exactly. और वही। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमारे जो फैमिली पैटर्न है उसमें भी हमने बहुत चेंजेस देखे हैं। हाँ। पहले तो न्यूक्लियर फैमिली आई, फिर दोबारा से हम्म जॉइंट फैमिली आ गई। हाँ, उसके बाद वापस से न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया। सो काइंड यस। ऑफ बहुत सारी चेंजेस सोसाइटी की वजह से इकोनॉमिक स्फीयर में होती हैं। और इकोनॉमिक स्फीयर्स की वजह से रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हो रहा था कि वापस लोग गांव से माइग्रेट कर रहे थे, तो फिर से क्या हो रहा था कि फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो रही थी। डिवाइड, अरे रशियन रिवॉल्यूशन तो बहुत दूर है। जब इंडिया में ही हम्म जब ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और न्यू न्यू हम्म सिटीज बन रही थी, तो कैसे पुरानी सिटीज के जो लोग थे, जो वहां से माइग्रेट आर्टिजन्स कर रहे वगैरह थे। थे, हाँ, वो आर्टिसंस वापस वगैरह। विलेज की साइड माइग्रेट उनको करना पड़ गया, हाँ क्योंकि जो टाउन थी, जो सिटीज थी, वहां पे उनके हाँ लिए काम ही नहीं बचा था, तो दे हैव टू मूव हाँ टुवर्ड्स दियर हाँ, फार्म। जैसे आर्टिस्ट वगैरह जो पेंटर्स वगैरह थे, जब हाँ, राजा का ही चला गया सब कुछ, जब कोर्ट ब्रिटिश ने जब टेक ओवर को। बेसिकली, हाँ हाँ, हाँ, कोर्ट्स पोर्ट जब डिमोलिश आर्टिस्ट होने थे लग गए। हाँ। हाँ, तो उन्हें वापस अपने गांव में आके पीजेंट्स का काम करना पड़ गया, पड़ क्योंकि दे गया। डिडंट हैड एनी ऑप्शन। तो दिस इज हाउ सोसाइटी एंड इकोनॉमी इज वेरी मच इंटर रिलेटेड। यस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है स्कंद क्यों नहीं कुछ बोल रही है। हाँ, I'm मुझे just listening. I don't know, sociology मैंने पढ़ा नहीं है कभी. फिर भी इट्स इट्स फिर ओके। भी हाँ, यू माइट हैव सम I आइडियाज। just read one Max Weber का theory. Maybe I can tell it later. Yeah, I Max just know Weber is about also a very famous कार्ल social मार्क्स एंड scientist. कार्ल मार्क्स एंड maybe मैक्स जब वेबर, we'll द टू talk about पीपल। religion. Yes. नहीं, go ahead. Yeah, Skand was telling us about Max Weber. I या told स्कंद, कि जब religion वाले point पे हम लोग आएंगे, then we can talk about Max Weber.
Max Weber. Max Weber. या Okay, okay. अगर हाँ तो क्या नाम है So we'll let's talk start with religion only. या तो अगर देखें तो वी एक्सेप्ट कि रिलीजन इज अ वेरी सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट और एमिल डर्कियम Emile हाँ Durkheim. उनका एमिल डर्कियम ठीक है आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कोई गाइस बात नहीं. बिकॉज मेरे आई को भी नहीं फाइंड पता, इट मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं. हाँ तो Pronoun. उनका ना उनके जीवन का एक लक्ष्य था ठीक है उनके जीवन का ये लक्ष्य था कि चाहे कोई चीज क्या नाम है प्रैक्टिकल साइंसेस की हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या कहीं से भी उनको उन सब चीजों को लाके सोशियोलॉजी में बेस देना था ये उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था जैसे अगर वी टॉक अबाउट दिस डिविजन ऑफ लेबर ये भी थ्योरी उन्होंने ही दी है जो सोशियोलॉजी में है हाँ. उन्होंने कहा है कि ये इकोनॉमिक्स वाला तो बाद में आया भाई पहले हमने शुरू किया था तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दो उसके बाद अगर यार देखें तो लेकिन सुसाइड वाला कॉन्सेप्ट ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था पर इन्होंने कहा नहीं ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है साइकोलॉजी को हम नहीं मानते ये सब हम नहीं मान यार सोशियोलॉजी लेकिन इमाइल डर्काइम की जो भी थ्योरीज थी मुझे तो लगता है पता नहीं क्यों उनको पूरी सोसाइटी में बहुत हार्मनी पैदा करने का शौक था मतलब उनको हाँ लगता था कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है जो कि बिल्कुल भी नहीं था और वो थ्योरीज है वो हमारी कार्ल मार्क्स की थ्योरीज है जो कि एकदम नेगेटिव थ्योरीज है. हम्म तो उन्होंने सबसे पहले जो कार्ल रिलीजन मार्क्स का का जो हाँ कार्ल मार्क्स अच्छा अच्छा पहले से बोल नहीं नहीं इट्स सुना था ओके वी आर नॉट एबल टू हियर योर वॉइस ओनली से समथिंग हमारे व्यूअर्स भाग जाएंगे कहेंगे अरे वेयर इज कन वी लाइक हर सो मच उसके बिना हम एग्जैक्टली. पॉडकास्ट सुनेंगे ही नहीं भाई वही तो. है ना या अच्छा तो मैं बोल रही थी कि बिफोर वी टॉक अबाउट मैक्स वेबर का रिलीजन वाला थ्योरी उसके पहले तो कार्ल मार्क्स का जो सुपर स्ट्रक्चर वाला था ना हाँ मतलब एक बार उसे एक्सप्लेन कर दे सो दैट इट विल बी इजियर टू इंटरकनेक्ट बोथ ऑफ देम. या श्योर तो अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि कार्ल मार्क्स वाज लाइक द गॉड फॉर द लेबर क्लास तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिन्होंने इसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें किसी मतलब मान लें हमें किसी कंट्री को कॉन्क्वेयर करना है ठीक है तो हम ज्यादातर कैसे करते हैं पॉलिटिकली दैट्स हाउ वी डू इट है ना बट अगर हम उसको पॉलिटिकली ना करके इकोनॉमिकली करें लाइक अगर हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लें तो क्या हम उस जगह को बेटर कॉन्क्योर नहीं कर लेंगे बहुत अच्छे से कर लेंगे फिर तो. वही तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मान लो कि एक सुपर स्ट्रक्चर है तो अगर उसका बेस नहीं होगा तो क्या वो सुपर स्ट्रक्चर टिक पाएगा नहीं नहीं ना नहीं तो वो सुपर स्ट्रक्चर का बेस है इकोनॉमी ठीक है ओके और उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें आता है पॉलिटिकल कल्चरल बाकी सारी चीजें वो सुपर स्ट्रक्चर है पर उन सबका बेस है इकोनॉमी और इकोनॉमी में क्या आता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आई लैंड डोंट अग्री लेबर विद दिस कैपिटल आई डोंट अग्री विद दिस बट इट्स गो ओके अहेड. नॉट टू अग्री विथ हिम हाँ तो या उन्होंने यही ये चीज उनकी कहा था थ्योरी है. हम हाँ सिर्फ उसको वही पढ़ के तो समझ सकते हैं. वही हाँ तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी चीज को कॉन्क्वेयर करना है तो हमें सबसे पहले इकोनॉमी को मतलब इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से उसको करना चाहिए अगर हम फोर्सेस और ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर ले तो हम एक इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और ये इसको बहुत एविडेंट भी है शायद कहीं ना कहीं कि अगर हम किसी भी कंट्री या फिर किसी भी जगह की अगर इकोनॉमी को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे जो अगर हमें वहां पे सिर्फ पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए या फिर कल्चरल डोमिनेंस चाहिए तो वो भी लेके आना बहुत इजी हो जाता है एक तरीके हाँ से. काइंड ऑफ तो उसके बाद इस थ्योरी को और भी ज्यादा अगर हम देखें तो फ्रेडरिक एंजल जो उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड माने जाते थे कार्ल मार्क्स के और ग्रामशी इन दोनों ने मिलके इसमें और एडिशंस किया है तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो सुपर स्ट्रक्चर है और उसका बेस है ये इंटर रिलेटेड नहीं है दीज टू आर सेपरेट एंटिटीज पर बाद में आके इन्होंने कहा मतलब ग्रामशी और एंजल्स दोनों ने मिलके कहा कि ये एक्चुअली इंटर डिपेंडेंट है अगर सुपर स्ट्रक्चर टूट गया तो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर मतलब सुपर स्ट्रक्चर का बेस टूट गया तो सुपर स्ट्रक्चर भी गिर जाएगा पर कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी पे उतना काम किया नहीं था उन्होंने बस कहा था कि देर इज अ बेस एंड द सुपर स्ट्रक्चर पर उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल जो जाके बाद में ग्रामशी और फ्रेडरिक एंजल्स ने क्लैरिफाई किया कि ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि अगर ये दोनों अच्छा तो इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर काइंड ऑफ पूरा अगर अगर हम देखें तो अगर इकोनॉमी और बाकी कल्चरल पॉलिटिकल चीजों को अगर हम इंडिपेंडेंट कर दे तो इकोनॉमी फिर भी नहीं चल पाएगी वी नीड सम पॉलिटिकल सपोर्ट ताकि इकोनॉमी थ्राइव कर पाए अच्छा तो मैक्स वेबर जो थे
क्या होता था ना, पहले प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो हाँ विंग थे क्रिश्चियनिटी के। Yes. तो क्या हुआ था कि बहुत लोग अच्छा काम करते, वो लोग, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दो हाँ। लड़के हैं, अ, एक ने 3 ग्लास लेमन जूस खरीदा, दूसरे ने भी 3 ग्लास लेमन जूस खरीदा, और दोनों को हर ग्लास पे 1-1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक्स के पास भी 3 रुपए आ गया, वाई के पास भी 3 रुपए आ गए। तो एक्स ने सोचा कि मैं 3 रुपए में से 2 रुपए का कैंडी खा लूंगा, और 1 रुपए से मैं एक और लाइम जूस खरीद के उसको बेच दूंगा। बट ये वाई जो था, उसने बोला व्हाट इफ मैं 3 रुपए का फिर से लाइम जूस खरीदूं और फिर से बेच के फिर से प्रॉफिट कमाऊं। तो ऐसा करके उसने, वाई ने, काफी बड़ा एक प्रोडक्शन यूनिट खोल लिया, फैक्ट्री खोल लिया। तो होता था, देखो अब फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अब नाम का ही है सिर्फ देश में। आई डोंट नो हाउ विल पीपल रिएक्ट टू इट, बट सी व्हाट हैपेंड, जो क्रिश्चियनिटी का प्रोटेस्टेंट विंग था, दे काइंड ऑफ सेड कि जो नर्क में जाना, हेल में जाना, हेवन में जाना, इट्स प्रीडिफाइंड है। ये प्रोटेस्टेंट के अंदर जो कार्विनिज्म था उसके अंदर का है, ये मेरे ख्याल से डेस्टिनेशन वाला। सो इट्स प्रीडिस्टाइंड कि कौन नर्क में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। सो यू हैव टू डू गुड डीड, और गुड डीड्स तुम्हें कैसे करने होंगे, तुम्हें अपने काम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। ये मैक्स वेबर की थ्योरी है, मेरी थ्योरी नहीं है, सो प्लीज डोंट कम आफ्टर मी। हाँ, मैक्स वेबर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो कार्विनिज्म था उनके कहीं ना कहीं जो उनके जो वे ऑफ बिलीफ था उसको बताया था कि मतलब उनका मतलब कार्विनिस्ट जो होते थे उनका मानना ये था कि अगर गॉड इज हैप्पी विद अस एंड वी आर गोइंग टू हेवन, तो हमारा जो बिजनेस है ना वो काफी बूम करेगा, और अगर हमें हेल में जाना है तो हम बहुत ही लॉस में जाएंगे। और उनका बेसिक मानना ये भी था कि मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब इन्वेस्टिंग इन मतलब मटेरियलिस्टिक चीज पे इन्वेस्ट करने से तो बेटर है कि हम सेव करके इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो और बूम करे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक कैपिटलिज्म से लिंक था, रिलीजन उस टाइम पे भी। हाँ, तो मैक्स वेबर ने यही वाला थ्योरी उठाया, एंड ही वाज लाइक कि देखो, इसी के कारण ये कैपिटलिज्म बढ़ा है। जो टीचिंग्स थे चर्च के कि द हार्डर यू वर्क और गॉड तुमसे खुश रहेंगे, तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो वाई था, वो भी चाहता तो एक्स की तरह मटेरियलिस्टिक प्लेजर ले सकता था 2 चॉकलेट खरीद के 1-1 रुपए से, बट ही डिड नॉट डू, रादर ही मेड अ फैक्ट्री। और कहीं ना कहीं इट इज कंट्रीब्यूटिंग, मतलब डायरेक्टली इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म यार। एंड दिस इज मैक्स वेबर्स थ्योरी, सो डोंट कम आफ्टर अस। बार-बार मैं बोल रही हूँ, डोंट बी स्टूपिड। फिर जब जैसी कैपिटलिज्म आती है तो फिर हमारे कार्ल मार्क्स भी आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जैसे ही आई है कहीं ना कहीं उसके बाद जो हमारी लेबर क्लास है उसका ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो गया है। और मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितने भी हार्डवर्क वाले जो काम होते हैं वो करते तो लेबर क्लासेस ही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी को अप्रेस करते हैं तो वो लेबर को ही करते हैं बाय पेइंग देम लेस। भाई अब पहले टाइम पे जो कैपिटलिज्म था और अभी जो कैपिटलिज्म है उसमें वैसे बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। अब बहुत सारे लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हैं जो उस टाइम पे नहीं थे, which gives kind of Karl Marx an edge to think about it. But अभी का capitalism cannot be compared to that time of capitalism kind of, मतलब अभी भी है कि बोला था। अच्छा, you go। हाँ मतलब no it's okay, you continue। अच्छा, तो मैक्स वेबर ने एक और बात बोला था, ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि इट्स नॉट कि इकोनॉमी ही, मतलब कहीं ना कहीं वही ग्रामची और फ्रेडरिक एंजल्स वाला चीज था कि इकोनॉमी इज नॉट द बेस, इट्स नॉट द ओनली बेस। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म रिलीजन के कारण ही बढ़ा ना, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। यू कांट से कि हाँ और ये चीज कार्ल मार्क्स भी मानते थे कि रिलीजन की वजह से ही इतना ज्यादा कैपिटलिज्म बढ़ा। सिर्फ रिलीजन नहीं, इवन कास्ट इज ऑल्सो प्रोमिनेंट चीज जिसकी वजह से कैपिटलिज्म बहुत हद तक बढ़ी है। क्योंकि मार्क्स ने तो ये भी कहा था ना कि चर्च की वजह से ही इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहे थे ना कि रिलीजन की वजह से बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात पूछूं मैं मुझे बहुत देर से ये बॉदर कर रहा था कि
capitalism versus socialism, is it really relevant today? Because you Uh, are sociology student, so uh, you would know better than me. What do you say? कहीं ना कहीं relevant है ये आज के दिन में? um, I didn't get your question properly. Can you please repeat? कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म ये आज हाँ. के टाइम पे रेलेवेंट है? आई कांट से कि ये पूरा नहीं है मतलब रिलेटेबल, बट कहीं ना कहीं अभी भी देयर इज समथिंग जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हम आई अग्री कि आज का कैपिटलिज्म इज नॉट व्हाट इट वाज लाइक कार्ल मार्क्स के टाइम पे। कार्ल मार्क्स के टाइम पे बहुत ऑपरेशन था, लेबर्स के पास कोई राइट्स नहीं था, कुछ वेलफेयर स्कीम्स नहीं था उनके लिए। पर अभी का कैपिटलिज्म इज वेरी मच डिफरेंट। उस टाइम पे क्रॉनी कैपिटलिज्म चलता था, पर यार अभी मेरे अकॉर्डिंग जो पहले का कैपिटलिज्म था उस टाइम पे जो ऑपरेशंस थे वो बहुत क्लियर हमें दिख रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे इम्प्लिसिट है और कुछ नहीं है। आज के टाइम पे भी ऑपरेशन हो रहा है लेबर क्लास का, बट वही है कि अब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो रिफॉर्म्स आए हैं लाइक लेबर लॉज एंड ऑल, तो हाँ उसकी वजह से वो थोड़ा सा कवर अप हो गया। अदरवाइज कोई कमी तो आज भी नहीं है। आज के टाइम पे आज के अकॉर्डिंग का हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम जैसा होता था उस टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा था। हाँ आज के टाइम का ऑपरेशन ये बोल सकते हैं कि जो बोलते हैं कि वी आर स्टक इन 9 to 5 साइकिल, हाँ घर जाते हैं बस नेटफ्लिक्स देखते हैं सो जाते हैं फिर सुबह 9 बजे उठ के काम पे। यार तो 9 to 5 तो उन लोगों को मिल रहा होता है ना जो बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, लाइक जिनको बेसिक्स जो शुरू से होते हैं वो बहुत अच्छी मिली है, लाइक बीइंग इट एजुकेशन, बीइंग इट हेल्थ फैक्टर। लेकिन जो लोग जो थोड़े से रिच पुअर क्लास में जिनका बर्थ होता है उनके लिए ऐसा नहीं होता है, उनको तो बिल्कुल बैक ब्रेकिंग काम करना पड़ता है। आई एग्री। अच्छा गॉट योर पॉइंट। या लाइक अपॉर्चुनिटीज उनके पास बहुत कम होती है। So you want to say कि it's still relevant, capitalism versus socialism, right? Yeah, It's we still are relevant. we are talking about sociology today, so I would like to say कि I would like to be in the middle, like golden Yeah. means अच्छा वही है वो मेरे never अकॉर्डिंग choose भी अगर extremes. एक्सट्रीम नहीं जाना है कभी। एग्जैक्टली बीच का चूज करो। और इवन हाँ किसी भी इकोनॉमी को अगर ढंग से काम करना है, किसी भी मतलब अगर किसी भी इकोनॉमी के सारे पीपल का अगर आपको अपग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म वे ऑफ सोसाइटी भी चाहिए होती है और सोशलिस्ट सोसाइटी भी चाहिए होती है, ताकि हर एक ग्रुप का डेवलपमेंट हो सके। लाइक या true, समझ agreed. So also we might also talk about the economy and opportunities, जिसके बारे में अभी मानसी बता रही थी कि जो बहुत ज्यादा मतलब लोअर स्ट्रेटा में लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए। लाइक दे आर स्ट्रक इन अ साइकिल कि अगर कोई लेबरर है तो उसका बेटा भाई इतनी भी कोशिश कर ले अभी के टाइम में तो उन्हें फिर भी अपॉर्चुनिटीज मतलब गवर्नमेंट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बट फिर भी इतना नहीं मिल रहा है कि वो जाके उस अपने मतलब साइकिल से बाहर आ पाए, कि वो भाई पॉवर्टी साइकिल को तोड़ पाए। भाई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी तो दे रही है, लेकिन ये कोई नहीं देखता ना कि वो अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे करे। अगर खुद मान लो अगर हमारे घर में जो अर्निंग पर्सन है वो बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहा है इन केस, तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत अर्ली एज से अपने आप को मनी अर्न करने के लिए लगाना पड़ता है, ताकि कम से कम हमारे पेट में कुछ तो जाए। लेकिन तो एजुकेशन इज नॉट लाइक कि तुम सब बहुत इजीली अगर तुमको कोई दे भी रहा है तो तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो। पहले तो तुम्हें अपने पेट का सोचना पड़ेगा, उसके बाद तुम एजुकेट होगे ना। ट्रू, दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक रहता है वो। या एंड ऑल्सो अब क्या नाम है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट कि ऑल्दो इतना ज्यादा लेबर लॉज और ऑल दैट है, फिर भी कैसे कैपिटलिस्ट लोग अपना मतलब फायदा करने के लिए इन लेबर लॉज को भी डाइल्यूट कर रहे हैं। इट्स हैपनिंग। इवन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज ऑल अबाउट डिल्यूजन ऑफ लेबर लॉज। या एक बात बताओ, मेरे पीछे से बहुत नॉइज हो रहा है क्या? नहीं नहीं अच्छा मुझे बहुत आ रहा है। नहीं मुझे तो हमें तो नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है तब तो। Hmm. हाँ कहाँ थे, सॉरी। It's okay. हाँ. हम कैपिटलिज्म And also we can talk about the Banjaras wala thing and the trade, because if we're talking about trade and society, so Banjaras play a very very important role.
बिकॉज जितने भी जो फार रीजन में अगर हमारा ट्रेड फैला हुआ था तो वो कहीं ना कहीं बंजारास की हेल्प से था। बिकॉज वी ऑल नो कि बंजारा का काम यही होता है कि एक जगह से दूसरे तक जगह घूमते रहना। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ घूमते थे, वो कई बार जो गुड्स होता था एक ट्रेडर से वो दूसरे ट्रेडर को भी लेके ट्रेडर के लिए भी लेके जाते थे वो, और उनके लिए उनको लाइक मनी भी मिलता था। और कई बार ना वो मतलब जहाँ गांव में वो रुकते थे तो अगर उनको कोई अच्छा सामान मिल गया बेचने के लिए या फिर उनके पास कुछ सामान है बेचने के लिए तो दे यूज टू ट्रेड। या सो ट्रेड का जो मतलब काइंड ऑफ कंसेप्ट जो मतलब आज के टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बंजारास की वजह से ये आइडिया आया कि एक आया जगह था की चीज ले जाके दूसरी जगह बेची दूसरी जा जगह पे ले सकती जा है। सकते हैं। एग्जैक्टली। ऑल्सो एंड ऑल्सो अगर हम ट्रेड की बात करें तो वी कांट लीव द पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट एंड ट्राइबल्स आउट ऑफ दिस यस मार्केट ऑफ बिकॉज कोर्स तो देयर वाज दिस एग्जांपल, मतलब अगर हम देखें तो जब कॉलोनियलाइजेशन हुआ था तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत हद तक फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेस है उसको कंट्रोल करना चाहते थे। तो पहले तो जब वो कंट्रोल करना चाहते थे सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारी कैटेगराइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हुई थी तो उसकी वजह से जो एक्सेस था फॉरेस्ट में वो डिनाई कर दिया गया था लोकल्स को। तो हमने देखा कि उस टाइम पे कितने हद तक जो उनका वे ऑफ लिविंग था पहले तो वो बहुत चेंज हो गया, क्योंकि पहले वो कहीं ना कहीं हंटिंग एंड गैदरिंग में बिलीव रखते थे। हाँ, एंड पर देन अब उनके ऑल पास ऑफ अ ऑप्शन सडन ही नहीं बचा हंटिंग एंड गैदरिंग का, क्योंकि अब उनको फॉरेस्ट को ही रेस्ट्रिक्ट मतलब दे वे फॉरेस्ट ड्वेलर्स और उनको ही फॉरेस्ट से निकाल दिया गया कि नहीं भाई निकाल यू दिया कांट गया, डू दिस। उनका तो तो घर भी चेंज हो गया और मीन्स ऑफ हाँ लिवलीहुड भी चेंज हो गया। वही हो गया। और उनके पास मतलब पहले जो लोग मतलब ट्राइबल्स जो अपना खुद कमाते थे और अपना मतलब जैसे कमाते क्या थे, पहले तो उनका यही हैबिटेट था ना कि वो फॉरेस्ट जाते थे, एक मतलब वहां से अपना गैदर करते थे फूड और फिर उसी के थ्रू उनका लाइवलीहुड चलता था। बट अब क्या हो गया कि उनको अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए बॉन्डेज लेबर्स जैसे काम करने पड़ गए, विच वाज लाइक काइंड ऑफ एंड डेरोगेटरी फॉर देम। एंड नॉट ओनली बॉन्डेज लेबर, मतलब जब कॉलोनियलाइजेशन हुआ था तो ब्रिटिशर्स जब उनके एरिया में आने लग गए तो उसकी वजह से हमने देखा है कि उनका कल्चरल चेंज भी बहुत हुआ है। क्योंकि जब वो आते थे तो अपने साथ अपनी तरीके की चीजें लेके आते थे एंड देयर यूज्ड टू बी दिस हार्ट काइंड ऑफ मार्केट। तो वहां पे जो हार्ट होता था वो मार्केट में जो लोग जैसे बैठते थे ना उसमें उनके कास्ट की पोजीशन भी कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली उससे दिख जाता था। हाँ, बिकॉज यहाँ से देखे तो इस यहाँ मतलब ब्रिटिशर्स के इस एक्शन की वजह से जो इंडिया में मतलब कास्ट सिस्टम था उस पे भी बहुत असर पड़ा, क्योंकि पहले ट्राइबल्स उनका एक खुद का सोशल बबल था। अब क्या हुआ, उन्हें बबल था, कास्ट हायरार्की में उन्हें मतलब एडजस्ट करने सबसे की कोशिश नीचे करी लाके दी है। उनको डाल दिया गया हाँ ताकि वो घुल मिल सके मेन स्ट्रीम हाँ सोसाइटी के साथ। इवन दे विश्ड टू डू दिस और नॉट, उनको मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये चीज कंपल्सन कर दी गई थी। और वो ट्राइबल्स के लिए ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था बिकॉज वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो फ्री थे, वो अपने मन के ही हाँ मालिक हुआ करते थे। वही तो। और फिर अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्राइबल्स एंड ब्रिटिश, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, मतलब एग्जैक्टली। ही वाज द नॉट हीरो। ओनली बिरसा मुंडा, देयर वाज आल्सो दिस आंध्र प्रदेश में एक और कोई ट्राइबल थे तो हाँ उन्होंने हाँ ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए खुद को बोला कि आई एम द गिफ्ट ऑफ गॉड, और मेरे मेरे उससे आया है कि हाँ मतलब हाँ, मेरे ये भगवान ने मेरे को बोला है। बिरसा मुंडा ने ही बाद में ये कहा था कि आई एम अच्छा, मैं ये गॉड का और मैसेंजर हूँ। और हम्म। हाँ मतलब ये उन्होंने ये बिरसा मुंडा बहुत जब ही वाज मतलब किड, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का मिशनरीज होता है ना, हाँ, तो ये इससे मिशनरीज की वजह से। हाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब ये खुद का रिवॉल्ट शुरू किया। क्या? क्योंकि आवाज आ रही है तुम लोगों को। हाँ हाँ बोलो बोलो मैं बोलो। बोलो। ये लोग है कौन? बहुत स्लो I आई have थी, no मेरे को लग रहा था idea. कोई बोल रहा है। I have हाँ no idea who are they. ओके इट्स ओके। Our listeners, if you are from sociology or history background, आपको तो पता होगा कि भाई बिरसा मुंडा कौन थे, और अगर नहीं थे तो you should know about him, क्योंकि एग्जैक्टली। इंडिया के बताओ इंडिपेंडेंस भाई। में अगर हम देखते हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में हम बस जो फ्रंट लीडर्स थे बस उनका ही कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ऐसा पर उसके बिल्कुल भी नहीं पहले है। के जो रिवॉल्ट्स थे उनका भी देखो कि बहुत सारे रिवॉल्ट्स जो पहले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए हैं उनको भी उतनी वैल्यू देना इज इम्पोर्टेंट। आई मीन और इफ यू टॉक बहुत हद अबाउट तक
बहुत हद वी तक जो रिवॉल्ट हाँ चालू हुए थे वो कहीं ना कहीं ट्राइबल एरिया से सबसे ज्यादा हाँ आए थे, क्योंकि ट्राइबल्स, हाँ सबसे सबसे ज्यादा पहले ऑपरेशन उन्होंने उनको ही रेजिस्ट हुआ करना था। शुरू किया। जो मेन स्ट्रीम इंडिया थी वहां पे तो लोग एक्सेप्ट करने लग गए थे ब्रिटिशर्स को, बट जो ट्राइबल्स थे उन्होंने ही सबसे पहले आवाज उठाना शुरू किया कि नहीं भाई, दिस आर नॉट आर काइंड ऑफ पीपल, हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे। रेवोल्यूशन का आइडिया आया, ये कहीं ना कहीं ट्राइबल्स ने बहुत ज्यादा मतलब प्रोपोगेट किया है इस आइडिया को। तो इफ यू आर एन इंडियन, यू शुड नो अबाउट दिस ट्राइबल रिवॉल्ट्स, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अस। हम ऐसे मतलब आज भी देखें तो हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा मतलब है इंडियन मेन स्ट्रीम इंडिया में, कि हम ट्राइबल्स को इतना ज्यादा मतलब इनकलकेट नहीं वैल्यू करते नहीं हैं। देती लाइक। वही तो इनकलकेट नहीं कर पाते अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में। बट जबकि देखें तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इवन इन मेकिंग व्हाट वी आर टुडे। सो इट्स हाई टाइम वी नो अबाउट देयर हिस्ट्री, बिकॉज इट्स नॉट देयर हिस्ट्री, इट्स आवर हिस्ट्री। आर हिस्ट्री। Of course. So if you don't know about Birsa Munda, please go and research about it. तुम बता दो भाई। अरे भाई इतना ठीक है, हम वी आर मेकिंग पॉडकास्टिंग। अब मैं यहाँ पे ऐसे शुरू कर दूंगी ना एक एक टॉपिक्स एक्सप्लेन करना, तो हमारा पॉडकास्ट तो 4-4 5-5 घंटे का बन जाएगा, फिर तो कोई बन सुनेगा जाएगा। नहीं। हम तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये चीज है, इसके बारे में आप खुद रिसर्च करो। अगर आपने हमारा लास्ट नहीं देखा है एपिसोड तो उसमें देखो, ऑनलाइन सर्च से आप कितना ज्यादा सीख सकते हो, हमने उसमें बात किया है। सो प्लीज वॉच I feel आवर like एपिसोड। I feel like a passive listener today. It's okay, every one of us has a part to play. इट्स इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजों के बारे में जिन्हें हमें नहीं पता, मुझे और मानसी को नहीं पता होगा, वो स्कंद को पता होगा, तो स्कंद हमें उसके बारे में बताती है, तो हम जाते हैं रिसर्च करते हैं, फिर हमें पता चलता है अच्छा ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली। सबको तो सब कुछ नहीं पता होता है। वही तो, सबको सब कुछ नहीं पता हो सकता। क्या फिलोसफी भाई, आज में मेरे नेटवर्क के साथ कोई इशू है, बहुत ज्यादा इश्यूज है तेरे नेटवर्क में। मेरे को खुद फील हो रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो दूसरों तक नहीं जा रहा है। हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, मुझे लास्ट में फिलोसफी सुनाई दिया बस। मैंने बोला फिलोसफिकल आइडियाज है ना कि सबको हाँ। सब कुछ होता है। या आई मीन इट्स लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या कोई कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए? इट्स ओके अगर आपको कोई इतनी बड़ी हिंट दे दुनिया रहा है है, उसमें वही इतने तो फैक्ट से जानने को, इट्स वेरी हाँ इम्पॉसिबल कि हमें सब कुछ पता हो। वही तो, आपको कोई हिंट दे रहा है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, तो गो एंड रिसर्च अबाउट इट, नो अबाउट इट, हाँ, सिंपल। और बहुत सारी चीजें एक्चुअली में जानने लायक होती भी नहीं है। हाँ, इट्स लाइक जिनके बारे में भाई आपको जानना चाहिए उसके बारे में जानो, अब हर चीज जान के क्या करें। इसी से मेरे को एक चीज याद आया, इस वीक मेरे इंस्टाग्राम फीड पे हर जगह एक ही न्यूज था, जेनिफर लोपेज की सगाई टूट रही है। मैंने बोला भाई मैं जेनिफर लोपेज Okay, I seriously don't know who is he or she, whoever. she Jennifer Lopez. Who is she actually? she is a singer ना? हाँ, she is a singer. I don't know. यार मेरे को इंडियन सिंगर्स के बारे में नहीं पता हो तो मैं कहाँ बाहर के सिंगर्स को जानूंगी। हाँ मतलब अरे वही तो, अभी हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे थे ना, अभी ट्रेड एंड वेस्टर्नाइजेशन, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन कि एग्जैक्टली बाहर में क्या हो रहा है उसका मतलब सबसे ज्यादा उसके बारे में भी अब हमें पता होता है। वही तो, सबसे पहले हमें इंडियंस को हम ही सबसे पहले कमेंट देने वाले होते हैं, और हमें बहुत पता नहीं क्यों इंटरेस्ट भी होता है दूसरे की वही जिंदगी तो में। अपनी तो संभल नहीं रही, अपना देश संभल नहीं रहा है, दूसरों पे जैसे अभी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना बोलूं मैं, तो अभी देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी उन्हें फार्मर्स के प्रोटेस्ट का उतना अपडेट नहीं है, पर कैपिटल में जो हुआ था ना बांग्लादेश पर उन्हें कैपिटल हिल वाले पे, कैपिटल यूएस कैपिटल वाले पे उनको कमेंट करना था। सो टॉक अबाउट इट, हमें बहुत गालियां पड़ेंगी। अरे कशिश हमेशा यही करती है, मैं कंट्रोवर्शियल नहीं हो रही हूँ, कंट्रोवर्शियल होने में तो बहुत मजा आ रहा है। अब कंट्रोवर्सी अपना बोल लेती है वो, मैं कंट्रोवर्शियल नहीं हो रही हूँ। It's my opinion, okay? My opinion. No one can actually do anything if it's my opinion. In your opinion, लेकिन सबको पता है ये किन किन का ओपिनियन है। Yeah. वही ना यार, लेकिन क्या पता नहीं इंडिया का क्या ही होगा। कभी कभी तो अगर सोचे तो लगता है किस जगह हम रह रहे हैं। वही तो अभी जैसे हम देखें तो अरे अभी अगर तुम इंडियन न्यूज चैनल खोल के देखो, वो दिन भर वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम में बैठे हुए हैं, उनको दुनिया में और कुछ है ही नहीं। अभी इवन आई डिडंट न्यू कि मतलब अभी 3 स्टेट्स और एक और यूटी में और इलेक्शन होने वाला है अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और वही अभी मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था तो उसमें बोल रहे थे राइटर कि मतलब क्यों भाई सिर्फ कोलकाता वेस्ट बंगाल ही है तुम्हारे पास, या फिर कोई और यूटीज
और स्टेट्स है वही जिसकी तो इम्पोर्टेंस है इस तीन इंडिया स्टेट्स में। में इलेक्शन है, तेलंगाना में तो इलेक्शन हो के खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। भाई कौन आया वहां पे? अभी पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। और यू रिजल्ट नहीं सी, आए। एक बात बोलूं, ये हाँ दिखाते हाँ कौन है? क्योंकि देखने वाला देख रहा है कहीं ना यार कहीं। द एंड कंज्यूमर इज बीइंग एंटरटेन्ड बाय ऑल दिस, तो इसलिए वही ये तो नुकसान एग्जैक्टली। है। यार लेकिन मैं सच बोलूं, न्यूज चैनल सब बिकी हुई है। हाँ, दैट इज जी सो हाँ, इससे कंट्रोवर्शियल। बड़ा एक्सप्लिसिट बात तो कोई है ही नहीं। वही तो, अब जैसे हम मानते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया, अब ये मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा वन हिल साइडेड हो चुकी है। गई है, मतलब क्या ही बोले। ओके, वी आर स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम आवर टॉपिक। So today's या topic was interlinking जस्ट society लास्ट, and economic एक activities. सेकंड, वन Yeah. लास्ट ऑब्जर्वेशन। Okay. देखो, वो लोग दिखा रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं, हम भी हाँ, दिखा रहे हैं, हमारा भी बेसिकली स्कंद कह रही है कि ना हमें देखना चाहिए ना वो दिखाएंगे। नहीं, आई एम सेइंग कि भाई हम भी तो अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं, हमारा हाँ, पॉडकास्ट सुनो, देखो। सुन लो भाई सुन लो, yes, you'll get insights. प्लीज सुन लो, ये मेरा पहला कुछ ढंग का काम है कॉलेज में आने के बाद। अरे Yeah. उदय भाई नहीं, वेलकम में आलू ले लो। हम ऐसे करें। मैं कसम से एटलीस्ट ना मैं जिंदगी में ये तो कह पाऊंगी कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव किया है, वो है कशिश और स्कंद के साथ कोलैबोरेट करके उनके पॉडकास्ट में। Yeah. हिंदी में लिखेगी सीवी पे लिखेगी मानसी अपने ये। क्या? हाँ मैं तो लिखूंगी भाई सीवी। भाई है ही नहीं मेरे पास कुछ सीवी पे लिखने के लिए, तुझे मजाक लग रहा है? ओके। कुछ कर यार, दिस इज सीरियस। क्या करूं यार, पता है ऐसा कॉलेज में आ गई हूँ ना, ऐसा लगता है कुछ ऑप्शन है ही नहीं, और जब होते हैं ना ये तब देखने का एकदम- मन भी नहीं करता। ये एकदम गलत बात है, तुझे पता है? ऑप्शन हर मुझे जगह पता है होते तो है, लेकिन अब इच्छा नहीं होती। अब ऐसा लग रहा है ना बस कॉलेज से निकल जाओ यार, कुछ और कर लेंगे। Okay, guys, can we talk about society and interlinkage with economic इतने activities? सारे एग्जांपल्स देने के बाद ना बहुत एविडेंट है कि हमारी सोसाइटी और हमारी इकोनॉमी ना बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है, बीइंग इट एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, बीइंग इन फैमिली, कास्ट, क्लास, रिलीजन, एनीथिंग लाइक एनीथिंग। हाँ, जो भी कुछ है दुनिया में उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, यही एंड मुद्दा है सोशियोलॉजिस्ट का। ओके, हाँ, क्योंकि उसको इसलिए देख सकते हो क्योंकि सोशियोलॉजी हर एक जगह घुसी हुई है, क्योंकि तो एग्जैक्टली। कंक्लूड क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? हाँ, तो हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टार्टिंग विथ स्कंद ने बताया दैट नटुका चेटियर्स वाला हुंडी वाला कॉन्सेप्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो उस टाइम पर प्रोमिनेंट था, फिर हाउ मार्केट एंड कास्ट आर इंटर रिलेटेड, कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं ना कि वो कास्ट बेस्ड था, उनके लिनेज डिनेस्टी के थ्रू इंटर रिलेटेड था, वरना उनका जो मतलब काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, गाइस हेल्प क्या मी आउट। कहते हो? अरे मतलब उनका जो क्या 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 बोल। अरे मतलब उनका जो वो था, मेरे मुंह पे वर्ड नहीं आ रहा है अभी, क्या था वो? मेरे मुंह पे वर्ड नहीं आ रहा है अब। किनका क्या था? तुम लोग ही एक्सप्लेन करो भाई, कंक्लूड करो, मैंने आज बहुत बोल लिया, मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा। हमें इकोनॉमी, हाँ बोल बोल उसका बोलेगी। तू यार गेस्ट यार, नहीं तूने सबसे कम बोला है, तू बोलेगी। we are literally going back। नहीं तू बोल। हाँ ऑब्वियसली। सबसे पहले शेटियर्स का बात किया हम लोगों ने। हाँ। हम लोगों ने देखा कि कैसे कहीं ना कहीं कास्ट के कारण इन लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस फैला लिया, नॉट जस्ट इन अ कंट्री बट इन अ कॉन्टिनेंट, इन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। या फिर उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट रिलीजन, है ना? उसके बाद मैक्स वेबर, कार्ल कार्विनिज्म मार्क्स की बात की थी। सुपरस्ट्रक्चर बेस, मैक्स वेबर, एमिल डर्कहेम, एंड फिर इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटीज की कैसे जो एकदम लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उनको मतलब चांस ही नहीं मिलता कि वो अपनी पॉवर्टी साइकिल को मतलब ब्रेक थ्रू करके फ्री हो पाए। एग्जैक्टली, मतलब प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। और उसके बाद जेनिफर लोपेज की सगाई टूट रही है, वो भी बात की। यस, जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट एमिल डर्कहेम के रिलीजन और टोटम थ्योरी पे भी बात की कि कैसे उनको हर चीज को सोशियोलॉजिकल एंगल देना होता है, उनके जिंदगी का मुद्दा ही यही है।
Then we talked about tribe and markets. या ट्राइबल कैसे ब्रिटिशर्स और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हमने बात की एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मार्केट. ट्राइब के बारे में बात किया. We also talked about Marwari community. या पूरा सुन लो यार, इतना क्या तुमको कंक्लूजन सुनना है? हाँ, नहीं तो तुमने कंफ्यूजन देना था. नहीं मतलब एक ब्रॉड पिक्चर में यही कह सकते हैं कि वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट लिटिल थिंग्स और कहीं ना कहीं जो एक ही जगह आके कनेक्ट हो रही थी वो कि हाउ मार्केट इज इंटर रिलेटेड थ्रू सोसाइटी. And memes was this. So guys, that's it for today. And I hope, Mansi, how was your experience with us? It was so fun. I liked it. मैंने बोला तो एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ कि मुझे लग रहा है फाइनली मैंने 2 साल की जिंदगी में अभी कुछ ढंग का किया है. ओके भाई 2 साल हो गए कॉलेज को. वही तो सोच 2 can't साल even हो गए believe. जिसमें से 1.5 साल हमने घर में ही बिताने हैं. 1 साल घर पे बिताए. मतलब यू वोंट बिलीव 15th मार्च मेरा 1 साल ऑलरेडी घर में हो जाएगा. मेरा तो ऑलरेडी हो गया. मैं 5th मार्च को आई थी. मेरा 15th को होगा. कशिश वाज लाइक नहीं यार नहीं जाना घर, नहीं जाएंगे इस बार होली ब्रेक में घर. लेकिन फिर सबसे पहले इसने टिकट बनवाई अपनी. पता है छूटी है और ये लास्ट छूटी है. इवन आई गेस तुम दोनों पहले तो साथ आने वाले थे ना. कब? पता नहीं मुझे भाई. बट नाउ वी शुड कंक्लूड आवर पॉडकास्ट वरना फिर लोग हमें कहेंगे कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. एग्जैक्टली. क्या पता भाई, ऐसा इंडिया में नहीं बोलते कोई. हाँ वही मेन पॉइंट. तो ज्यादा ना बोल मत. इंडिया के लोग अभी तेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं. ठीक है. फिर तेरे लिसनर्स और भाग जाएंगे. अरे नहीं गाइस, don't do this. We love you all. Yeah, we are not judging anyone. Okay, Yes. if we hit 200 subscribers, Kashish will do a face reveal. क्या बोलते हैं भाई लोग? भाई टाइम. Okay. और अगर आपका फिर भी कशिश की शक्ल देखने का ज्यादा मन हो रहा है तो प्लीज इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ले जिसका नेम है मिस हजार्डस. आई डोंट नो व्हाई. हम लोग ने या फिर अभी भी मिस सोफिस्टिकेटेड राइटर है कशिश. नहीं आई हैव चेंज्ड दिस टू मिस हजार्डस. नाम जैसा नाम वैसी ही इसकी हरकतें. माइंड इट. Okay guys, I think this was one of the funniest and the most fun conversations we had. भाई क्या फन. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. फनी क्यों नहीं होगा भाई. मैं भी तो हूँ यहाँ पे. ये तो भाई तो नहीं, I don't know about Skan, but me and Mansi we did a lot of fun. है ना Mansi? Exactly भाई. मेरा बिना हंसे कोई भी काम नहीं हो सकता. And all I'll tell you guys, all Skan was doing was listening and judging us. है ना Skan? Exactly. नहीं भाई मेरा नेटवर्क खराब तो मैं अपनी नेटवर्क गाड़ ही दे रही थी. कोई बात नहीं. तो अगर हमें जज भी करेंगे हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. We don't care. And already बहुत लंबा हुआ है आज का पॉडकास्ट. So please पूरा सुनना. We have discussed a variety of topics and I hope you guys will love it. So that's it from our side. Bye. Bye. And thank you Mansi for the collaboration. And Yeah, thank you so much for having me. Yeah. Yeah. Bye guys. And please guys जवाब listen to welcome their होता है. podcast. They are really doing very good work. अच्छा भाई सुनो, थैंक यू का जवाब वेलकम होता है, थैंक यू नहीं होता है. यार तो तुमने मुझे बुलाया ये भी तो मेरे लिए कितनी गौरवान्वित वाली बात थी. तुम समझो. Okay. So that's it from our side. Yeah. Okay. Bye Bye. guys. Bye. Bye.